যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সাম্প্রতিক এক বক্তব্যের পর নতুন করে আলোচনায় বাংলাদেশের যুদ্ধ সক্ষমতা। তবে এই আলোচনা নতুন নয়। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ উত্তেজনার আগেও বাংলাদেশের সামরিক শক্তি নিয়ে দেশের মানুষের মনে এমন প্রশ্ন উকি দেয়। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্কের अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। আমি সুম্যান, আপনারা দেখছেন সুম্যান রিয়াকশনস বাংলা। और আমি ভালো আছি, आशा करी सभी ভালো आशें। यहाँ पे जी आज हम बात करेंगे बांग्लादेश सेना बानी की ताकत की, बांग्लादेश की मिलिट्री पावर की। बांग्लादेश को अपने डिफेंस के लिए अगर लड़ना पड़े तो बांग्लादेश किस कदर अपनी ताकत का जो करिश्मा है वो दिखा सकता है और दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। बांग्लादेश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है और यहाँ अभी इस वक्त में बांग्लादेश ने कितनी ज़्यादा डिफेंस पावर गेन की है। आप लोगों के साथ ये बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट है वो शेयर करेंगे, क्योंकि अभी जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की फ़ाइट के हवाले से, और साथ ही इंडिया ने बांग्लादेश के साथ भी फ़ाइट करने का जो एक थ्रेट है वो देना शुरू कर दिया और बांग्लादेश को कहा है कि हम जी बांग्लादेश के साथ भी जंग करेंगे, पाकिस्तान के साथ भी और वहाँ से बांग्लादेश के साथ भी। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश की जो मिलिट्री क़ुव्वत है वो कितनी है। यहाँ पर नो डाउट बहुत बढ़ चुकी है। तो बिना टाइम वेस्ट के पहले हम रिपोर्ट देखते हैं, इसको आखिर तक देखिए। वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সাম্প্রতিক এক বক্তব্যের পর নতুন করে আলোচনায় বাংলাদেশের যুদ্ধ সক্ষমতা। তবে এই আলোচনা নতুন নয়। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ উত্তেজনার আগেও বাংলাদেশের সামরিক শক্তি নিয়ে দেশের মানুষের মনে এমন প্রশ্ন উকি দেয়। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটার পর যা মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়। এছাড়াও মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মির সঙ্গে দেশটির সেনাবাহিনীর তুমুল লড়াই চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ সম্ভাব্য কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে সেটিও ছিল আলোচনায়। কারণ সে সময়ে মিয়ানমারের চলমান সংঘর্ষের কিছু গোলা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে পড়ে। বাংলাদেশের ভূখণ্ডের টেকনাফ গোলার আঘাতে কেঁপে ওঠার পর সামরিক শক্তি কার বেশি তা নিয়েও ছিল ব্যাপক আলোচনা। তবে আশার কথা হচ্ছে সামরিক সক্ষমতার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান খারাপ তো নয়ই, বরং অনেকের ধারণার চেয়েও ভালো। কারণ বিশ্বের 145টি দেশের সামরিক সক্ষমতা নিয়ে 2025 সালে যে তালিকা প্রকাশ করেছে globalfirepower.com, সেখানে দেখা যায় 2024 সালের তুলনায় 2 ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান 35তম, যা 2023 সালেও ছিল 40তম। এছাড়াও এশিয়ান মিলিটারি স্ট্রেংথ 2025 শীর্ষক আলাদা একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার। বিশ্বের সবচেয়ে বড় মহাদেশের 45টি রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান 17তম। প্রতিবেশী মিয়ানমারের অবস্থান বাংলাদেশের এক ধাপ নিচে এবং বাংলাদেশের ঠিক উপরে রয়েছে উত্তর কোরিয়ার অবস্থান। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারের রিপোর্টে বলা হয়েছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে রয়েছে 17,400 সদস্য এবং নৌবাহিনীতে রয়েছে 25,100 নৌসেনা। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা 16 কোটির বেশি, এর মধ্যে প্রায় 6 কোটি 61 লাখ মানুষ সামরিক বাহিনীতে যুক্ত হওয়ার যোগ্য। রিপোর্টে বলা হয়েছে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর আকার খুব বেশি বড় না হলেও আধা সামরিক বাহিনীর দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের 1 নম্বরে। বাংলাদেশে রয়েছে 68 লাখের বিশাল প্যারামিলিটারি ফোর্স। যুদ্ধ বা রাষ্ট্রের যে কোনো জরুরি প্রয়োজনে তারা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।
বাংলাদেশ সব সময় তার সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী এবং আধুনিকায়ন করার চেষ্টা করে আসছে। তারই অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, তুরস্ক সহ বিভিন্ন দেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কিনে থাকে বাংলাদেশ তার নৌবাহিনীর জন্য সাবমেরিন কিনেছে, তুরস্ক থেকে আধুনিক ড্রোন কিনেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। বাংলাদেশ তার বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নে অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান কেনার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। तारिक अहमद, कालबेला। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। बांग्लादेश सेनाबानी की ताकत, बांग्लादेश ने अपनी मिलिट्री पावर को कितना मजबूत किया है। पिछले 8 महीने में बांग्लादेश ने बहुत अहम किस्म की डील साइन की हैं। अगर हम शेख हसीना के दौर को देखें तो उस दौर में शेख हसीना ने बामुश्किल ही कोई डील साइन की, क्योंकि जो भी डील्स बांग्लादेश की जानिब से साइन की जाती थी इंडिया के दबाव की वजह से उनको वापस कैंसिल कर दिया जाता था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनुस जो है इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे उन्होंने जो है गवर्नमेंट को संभाला है, तब से अब तक 8 महीने में बहुत अहम किस्म की डिफेंस डील्स हुई हैं। ना सिर्फ चाइना, यहाँ पे टर्की, कतर और बहुत अहम किस्म की कंट्रीज, रशिया की बात करें तो उन्होंने अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ बांग्लादेश को देने का फ़ैसला किया है। और बहुत अहम किस्म की टेक्नोलॉजी बांग्लादेश ऑलरेडी इंपोर्ट भी कर चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी चाइना बांग्लादेश के साथ डील साइन कर चुका है। J-10C तैयारे वो बांग्लादेश को प्रोवाइड करेगा, जो बहुत पावरफुल तैयारे हैं। अगर इन तैयारों को इंडिया के तैयारों के साथ कंपेयर किया जाए तो वो इसके आगे खड़े भी नहीं हो सकते। और यही वजह है कि जैसे ही J-10C तैयारे आने की बात हो रही है तो इंडिया में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि बांग्लादेश इतने पावरफुल, इतने डेंजरस किस्म के हथियार जो अपनी कंट्री के अंदर ला रहा है। और साथ ही यहाँ पे चाइना के साथ जो अहम किस्म की डील्स हुई हैं कि जिसमें चाइना बांग्लादेश को वो तमाम टेक्नोलॉजी फराहम करेगा जिससे बांग्लादेश अपनी ही कंट्री के अंदर हर किस्म का जो वेपन है वो बना सकेगा। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट इन्होंने जो शेयर किया है और इंटरनेशनल लेवल पे जो बांग्लादेश की रैंकिंग है वो टॉप 40 में बांग्लादेश का शुमार होता है। लेकिन कुछ ही सालों के अंदर बांग्लादेश दुनिया की 25 ताकतवर तरीन कंट्रीज़ में बांग्लादेश का शुमार होगा और बांग्लादेश दुनिया की एक ताकतवर तरीन फौज के तौर पे, मिलिट्री पावर के तौर पे दुनिया के नक्शे पे छा जाएगा। तो ये वक्त दूर नहीं है, बस कुछ स्टेप्स हैं कि बांग्लादेश टॉप 25 में जो है शामिल हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है, जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, हाफिज़। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, हाफिज़।